चलो यार, दो ऑफ यू हैव द शीट. हाँ, पीछे से प्लीज पेपर ले लो, दो जरूर हैं. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. We'll be attempting March 25 the paper for you. Let's start off with the first question. Different types of respiratory substrates. Different types of respiratory substrate can have different energy values and therefore release different quantities of energy when they are respired. Complete table 1.1 to show the energy value of each of the three main types of respiratory substrates. Use one tick to identify which of the two possible energy values is correct for each respiratory substrate. तो आपने तीनों का पढ़ा हुआ है, आप जो values रख के जाते हो वो कार्ब का होता है 15.8 वैल्यू, जो प्रोटीन होता है उसका 17 वैल्यू होता है, जो लिपिड होता है उसका 38.4 39.4 वैल्यू होता है. उसने आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का दो कॉलम्स आपको दे दिए कि इनमें से किसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 17 किलो जूल्स पर ग्राम के बराबर है और किसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 37 किलो जूल्स पर ग्राम के बराबर है. सो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होते हैं उनका कम वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 17 के आसपास, एंड जो आपके पास लिपिड्स होते हैं उनका मोर देन ट्वाइस द वैल्यू होता है, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 37 लिखा हुआ है. ठीक है. पार्ट बी, determining the respiratory quotient of an organism can be used to indicate the main type of respiratory substrate that is being metabolized in respiration. This is because the different types of respiratory substrate have different RQ values. Table 1.2 shows typical RQ values for carb, lipid and protein. You already know these values. Carb का जो है सबसे highest होता है, protein का 0.8 0.9 होता है, lipid का आपने जो value याद किया है protein का वो 0.9 याद किया है, lipid का जो है सबसे least होता है which is 0.7. Part 1. State the name of the lab apparatus that can be used to determine the RQ value of organisms such as blowfly larva. तो जो apparatus आपसे पूछ रहे हैं वो simple क्या होता है, respirometer होता है. We can use a respirometer to determine the आपके ये course का learning outcome भी है. Using a respirometer to determine the rate of respiration, the effect of temperature on the rate of respiration, and to determine what RQ. आपके course में जो respirometer के तीन learning outcome है वो ये तीन है. Using a respirometer to determine what the effect of temperature on the rate of respiration, to determine how we use the apparatus to generally measure the rate of respiration, and to determine what RQ value. तो आप तीनों के बारे में याद रखो respirometer किस तरह यूज होता है. Part 2. When determining RQ values using the lab apparatus stated in Part B1, chemicals such as soda lime or potassium hydroxide solution are used. State the reason for using chemicals such as soda lime or potassium hydroxide solution when measuring the RQ values. तो आप जो क्यों यूज करते हैं potassium hydroxide? To absorb carbon dioxide. So we use it to what? To absorb carbon dioxide. To absorb what? To absorb carbon dioxide. Next part. Organic acids such as malic acid can also act as respiratory substrates. When respired aerobically, their RQ values may be different to the RQ values of what? Of the main respiratory substrates. Figure 1.1 shows the formula that is used to calculate RQ values. So आपको ये formula पता है. Number of moles ले लो, number of molecules ले लो. All of these are correct. Okay. When malic acid is respired aerobically, the equation is this. Calculate for part 1 how many molecules of oxygen are taken in when one molecule of malic acid is respired aerobically. So you can just उसने सारी चीजें आपके लिए balance कर दी except for oxygen ना, तो आसानी आप count करके आराम से balance कर लो. यहाँ पे total 4 times 2 8 and 3 11 oxygens है. यहाँ पे 5 है तो these should be total 6 oxygen ना. तो वो 6 करने के लिए you will need what? 3 moles of oxygen आप use कर लो. या अगर आपको वो chemistry से याद है ना, number of moles of oxygen का formula आपको याद है x plus y upon 4 minus z upon 2, आप उससे भी कर सकते हो. So if this is x, this is y and this is z,
तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करो x प्लस वाई अपॉन 4 माइनस z अपॉन 2, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। आप उस तरह भी कर सकते हो, बट दिस वाज सिंपल बिकॉज एक ही ब्लैंक था, तो आप काउंट करके भी कर सकते हो, तो इतना मसला नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 moles of oxygen. Part 2, calculate the RQ for malic acid and give your answer to 2 decimal places. तो RQ का वैल्यू क्या हो जाएगा, number of moles of CO2 जो कि 4 है upon number of moles of oxygen which is 3, 1.33 दो डेसिमल प्लेस पे प्लीज अपना वैल्यू देना। एंड रिमेंबर दैट RQ के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, तो कोई यूनिट नहीं आगे डालना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, the deer mouse blah blah lives in forests in North America. Figure 1.2 shows a deer mouse. The deer mouse is active throughout the year and is much more active during the night than during the day. At certain times of the year, deer mice spend a number of hours during the day in a physiologically controlled state of inactivity, state को बोलते हैं not active, known as torpor. During this time, there is a decrease in what metabolic rate. ध्यान आपको बता दी भाई ये वो टाइम होता है। इस तरह का पासर में एक और क्वेश्चन भी है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म था, उसके अंदर भी एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी आ जाती है जिसको आप टोर्पोर बोलते हो। इसमें बस ये होता है कि बॉडी बिल्कुल आप उसको अपनी लेमन टर्म में जिस तरह वो नहीं बोलते हाइबरनेशन एक ऑर्गेनिज्म का, ये हाइबरनेशन नहीं होता, डिफरेंट होता है, बट आप उससे एनालिसिस को इस चीज को ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। सो अगेन, the deer mouse is active throughout the year and is much more active during the night than during the day. At certain times of the year, deer mice spend a number of hours during the day in a physiologically controlled state of inactivity known as torpor. During this time, there is a decrease in metabolic rate. Figure 1.3 is a graph showing the RQ of a deer mouse from 6 to 22 hours. From 6 to 22 hours on a day that included time and torpor. So exam में नीचे आपको ग्राफ दिया हुआ है जिसमें RQ का वेरिएशन against what, against the time of the day, from 6 hours in the morning till what, till 22 hours in the night. और फिर उसने आपको एग्जाम में बता दिया इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में टोरपोर का कौन सा फेज था, राइट। सो दैट इज फ्रॉम, कितना टाइम हो गया है, फ्रॉम 8 hours to what, to कितना है यहाँ, ये 16 17 के आसपास है ना, कितना एग्जैक्ट बताओ कितना हो गया, 17.5 से ऊपर है। और भी द नंबर ऑफ आवर्स इज 14 16 एंड देन 17 पॉइंट समथिंग, बस ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना। बस इस दौरान जो है वो बेसिकली इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है ये जो डेयर माउस है। एंड यू कैन सी दैट इस फेज के दौरान आपके पास जो आरक्यू वैल्यू है वो ग्रेजुअली क्या करता है, डिक्लाइन करता है। एंड आरक्यू वैल्यू को स्मूथली डिक्लाइन नहीं करता, फ्लक्चुएशन होते हुए डिक्लाइन करता है। आपके नजर है बिकॉज वो आपसे आगे जाके डिस्क्रिप्शन अगर पूछेगा तो आप ये चीजें मेंशन करोगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राफ में, ठीक है। नेक्स्ट आप ये भी नोट करो कि वो डिक्लाइन किस वैल्यू से हो रहा है। द वैल्यू इज इनिशियली क्लोजर टू व्हाट, 1, ये 0.9 और ये 1 है, तो ये आपकी वैल्यू 0.98 है, सो इट्स वेरी क्लोज टू 1 लाइक दैट, ठीक है। तो आपके पास 0.98 से वैल्यू ड्रॉप होके ऑल द वे कहां जाता है, पीक वैल्यू से ऑल द वे यहां तक जाता है, व्हिच इज अराउंड कितना वैल्यू, 0.7 0.75 के अराउंड है। तो व्हिच इंप्लाइज भाई हो सकता है जब ये इनएक्टिविटी के फेज में जाता हो ना, तो आपके पास जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो चेंज हो जाता हो, वो सही सी बात है। आपको क्यों आप बोल रहे हो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट चेंज हो जाता हो, बिकॉज यू नो आरक्यू वैल्यू क्लोज टू 1 सिग्निफाइज व्हाट, कि आपके पास कार्ब्स मेटाबोलाइज हो रहे हैं, और जब वैल्यू ड्रॉप होता है तो दैट सिग्निफाइज व्हाट, कि अब आपके पास प्रोटीन और लिपिड में मेटाबॉलिज्म शिफ्ट हो रहा होगा, रेस्पिरेशन प्रोटीन और लिपिड की ज्यादा हो रही होगी। व्हाई एम आई सेइंग एनारोबिक नहीं हो रही, बिकॉज द वैल्यूज आर ऑल लेस देन व्हाट, 1, सो देयर इज नो एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो ड्रॉप आ रहा होगा ये आप किस चीज से एक्सप्लेन कर सकते हो, मेनली कि भाई देयर माइट बी अ शिफ्ट इन व्हाट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फ्रॉम कार्ब्स टू व्हाट, लिपिड और प्रोटीन। और आप सोच रहे हो क्यों, बिकॉज वो इनएक्टिविटी वाले स्टेट में ना, तो कुछ फीड तो कर नहीं रहा, तो हो सकता है ग्लाइकोजन स्टोर्स के हो गए हो एग्जॉस्ट। जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो बॉडी होगा वो शिफ्ट किस पे हो जाएगा, इनटू व्हाट, इनटू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। यू अंडरस्टैंड दैट, लाइक वो आपसे पूछेगा, आपको खुद अपना दिमाग लगा के वहां सजेस्ट करना होता है इस तरह के एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट पार्ट में बोले डिस्क्राइब द ट्रेंड शोन ड्यूरिंग टॉर्पोर इन फिगर 1.3 एंड सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ट्रेंड। तो 3 मार्क का इजी पिकिंग है। पहले तो आप उधर सी बात है, आप डिवीजन अपनी मर्जी से कर लो, डिस्क्रिप्शन का 2, एक्सप्लेनेशन का 1, या डिस्क्रिप्शन का 1, एक्सप्लेनेशन का 2। आई राइट 2 पॉइंट्स ईच फॉर बोथ, ताकि आपको पता हो यहाँ आपको मार्किंग करने रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन का एक पॉइंट आपका लिख सकते हो, that there is a general decrease in RQ during the torpor. So general decrease in what? Decrease in RQ during
टॉर्को आपको 1 मार्क मिला और आप दूसरे मार्क के लिए भी लिख सकते हो लाइक ड्यूरिंग दिस जो डिक्रीज है ये स्मूथ नहीं है, दिस डिक्रीज अकर्स इन व्हाट इन फ्लक्चुएशन लाइक, तो आपको वो दूसरा मार्क दे देगा लाइक डिस्क्रिप्शन का. सो द decrease the general decrease is non-linear अब और आगे लिख दो आप RQ value fluctuates. ये आपके दो हो गए डिस्क्रिप्शन के, इसमें से कोई एक भी लिख देते आपका मर्जी, आप 1+2 कर दो डिस्क्रिप्शन का एक और 2 एक्सप्लेनेशन का दे दो, या वहां मार्क्स स्कीम थोड़ी सामने होता है तो आप मेक श्योर आप एक्सेस ही लिख के आ जाओ अगर आप अच्छे पॉइंट्स हो सको वैलिड वाले पॉइंट. एक्सप्लेनेशन में अब आप क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे इनिशियली RQ value is close to 1 because carbs are metabolized. तो आप क्या लिखोगे initially RQ is close to 1, which signifies respiration of carbohydrates ठीक है. और फिर आप लिखो the drop in RQ value results due to what? Due to exhaustion of glycogen stores and transition to what? Lipids and proteins. आप लिखो आपको दूसरा में, ये एक्चुअली 2 मार्किंग पॉइंट है मार्क्स की में आपके इसकी मार्क्स की में, और आप इसका अपने एग्जाम में जब लिखोगे तो इट शुड मेक सेंस टू यू एज वेल ना, आप क्यों लिख रहे हो भाई. तो आप ये बोल सकते हो भाई कि RQ drops as glycogen reserves are depleted, and protein lipids undergo respiration. मैंने जो यहाँ लिखा है ये 3 मार्क के लिए पूरा लिखना जरूरी था बाय द वे. ये मैंने एक्चुअली आई थिंक 5 मार्किंग पॉइंट लिखे हैं जो मर्ज करके लिख दिए ना, इनमें से आप कोई भी 3 दे देना, मैंने आपको मार्क डिवीजन बस बता दिया. ईदर यू शुड राइट द आंसर जिसमें आप 2 मार्क डिस्क्रिप्शन के लिए 1 मार्क एक्सप्लेनेशन के लिए रखो, या 1 मार्क डिस्क्रिप्शन के लिए और 2 मार्क एक्सप्लेनेशन के लिए रखो. दिस इज हाउ योर मार्क डिवीजन विल लुक लाइक. ठीक है. Part 2. Deer mice have a daily period of torpor only at certain times of the year. Suggest reasons why a deer mouse enters torpor only at certain times of the year. तो आपने बताना है भाई क्यों ये certain times of the year में, आपको सजेशन देना है तो come up with valid suggestion. भाई मिसाल के तौर पे उसने आपको पीछे इतना फेयर सिनेरियो दिया है कि ये जो चूहा है भाई ये रात में एक्टिव होता है, दिन में एक्टिव ही नहीं होता लाइक, और दिन में ही यूजुअली आप देखो इसका जो आपको नजर आ रहा है वो आपको नजर आएगा सुबह शुरू हो जाता है इसका टॉर्पोर. कितने बजे शुरू होता है भाई? 6 बजे के करीब ना लाइक. तो हो सकता है भाई इस करने से इसको एक फायदा क्या हो रहा हो कि प्रेडेटर से बच रहा हो भाई, माइट बी अवॉइडिंग व्हाट प्रेडेटर्स. एक फायदा क्या हो सकता है कि सुबह के टाइम फूड की अवेलेबिलिटी इसको कम मिलती हो तो ये अपनी एनर्जी क्या करता हो, प्रिजर्व करता हो लाइक. ये फायदा हो सकता है. आपको सजेशन देने लाइक, तो कम अप विद प्लॉजिबल सजेशन. इसकी एक्चुअली कंफर्म वो जो फाइनल मार्क्स की होती है अभी नहीं आई है, प्री स्टैंडर्डाइज्ड मार्क्स की आई है, उसमें यूजुअली पॉइंट्स कम होते हैं. आपकी जो एक्चुअल मार्क्स की आती है उसमें ज्यादा पॉइंट्स अक्सर लिखे होते हैं लाइक. तो हो सकता है और भी हो जितने अभी मार्क्स में लिखे हैं उससे ज्यादा पॉइंट्स आपको एक्चुअल मार्क्स में मिल जाए. सो 2 marks 2 valid suggestions that you will give is to avoid what? To avoid predators, और दूसरा आप दे सकते हो to preserve energy stores due to what? Due to inadequate availability of food. ठीक है. Next question. Go to the next question. The orca blah blah has the largest distribution of all aquatic mammals and is found in nearly all seas and oceans. Orca are social mammals that usually live in groups. These groups can vary in size. आप जो चीजें मैं underline कर रहा हूँ ना मेरे साथ साथ आप underline करते जाओ. Okay. So again, the orca has the largest distribution of all aquatic mammals and is found in nearly all seas and oceans. Orca are social mammals
that usually live in groups, and these groups can vary in size. Figure 2.1 shows an orca. तो आपको diagram show किया हुआ उसका. Typical orca का बहुत बड़े होते हैं size में, और vary भी करते हैं like ये. There are a number of distinct types of orca. These distinct types of orca are classified as members of the same species. However, there is evidence that sympatric speciation is occurring. Part A1. There are two distinct types of orca in the northeast Atlantic Ocean. तो अब एक वो specific region में आपको बता रहे हैं, होते तो बहुत सारे टाइप के हैं, उनमें से दो distinct type के orca देखे जाते हैं in northeast Atlantic Ocean. उनका नाम है type 1 and type 2. Type 1 orca feed mainly on fish, and type 2 orca feed mainly on aquatic mammals such as seals. Do you see a difference in the feeding behavior type? That is one trigger for you that they might evolve into different species due to what? Due to differences in their behavior. और जो behavioral isolation factor होता है, वो कभी भी geographical वाली speciation नहीं करता, allopatric नहीं करता, वो क्या करता है? Sympatric. आपने दो ही तो main reason पढ़े हैं, फिर उसमें आपने reasons के पीछे फिर बहुत सारे factors पढ़े. वो behavioral और ecological isolation होता है, which can lead to what? Sympatric species. तो behavior का part एक ये भी है भाई, feeding habits इसकी different हो. ठीक है? Figure 2.2 shows the locations in the northeast Atlantic Ocean where type 1 orca and type 2 orca have been observed. Orca do not occur only in these areas, and some groups of orca travel great distances. तो यहाँ पे उसने एक बनाया हुआ आपके लिए की, जो सर्कल वाला है वो type 1 orca का distribution दिखा रहा है, जो square वाला है वो type 2 orca का in the northeast Atlantic Ocean. And you can see that they are fairly, मतलब कि ना पूरे जगह पे कोई ऐसा नहीं है कोई लाइन ड्रॉ कर सको आपके टाइप 1 एक जगह और टाइप 2 दूसरी जगह. जैसे आप इस जगह देखो साथ साथ हैं, इस जगह देखो साथ साथ हैं, लाइक हाँ ये आप जरूर बोल सकते हो मोस्ट लाइकली कि टाइप 2 और का ज्यादा है यहाँ पे जो नजर आ रहा है हमें सच कंपेयर्ड विद व्हाट टाइप 1, बट एग्जैक्ट काउंट करोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा. With reference to figure 2.2, explain why the type of speciation that is occurring in the orca is described as sympatric speciation. तो एक मार्क के लिए आपने बस क्या लिखना है? There is no geographical क्या नाम है barrier, no geographical isolation over here. साथ है ना भाई, तो एक ही जगह है भाई, तो आपके पास no geographical word barriers. Part 2. Suggest examples of behavioral separation that would contribute to sympatric speciation of type 1 orca and type 2 orca. आपको बताना है भाई क्या क्या behavioral examples देने हैं आपको जिससे behavioral isolation हो जाए between more organisms. तो आपको याद है behavior में क्या क्या आता है? एक तो मैंने आपको पीछे बता दिया ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक मार्क के लिए, तो आप लिखोगे difference in word, difference in word in type, ये आपने लिख दिया है. और क्या हो सकता है behavior में जिसकी वजह से sympatric speciation हो जाए? टिपिकल क्या बोलते हो? ये तो आप ये थोड़ी पढ़ते हो आप कोर्स में डिफरेंस इन डाइट, तो उसने सारणी में लिखा तो आपने लिख दिया. आपने क्या पढ़ा हुआ है सिंपैथिक स्पेसिएशन में? बिहेवियरल आइसोलेशन के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं कॉमन, लाइक एनी आइडिया? हाँ, सो गुड. सो डिफरेंस इन नीड, दैट्स द मेन थिंग. लाइक अब उसको तुम किस तरह लिखोगे मैं आपको बता देता हूँ. लाइक एक तो ये कि आप लोगों को जब हमने कोर्स में ये किया था तो आई टोल्ड यू कि जो चिड़िया होती हैं, हाँ, उनका जब भी वो कोर्टशिप करती हैं, लाइक मेटिंग करती हैं, तो उससे पहले उनका ना एक ये ट्रेडिशन होता है कि वो गुनगुनाती हैं. रिमेंबर दैट? हाँ, कि वो ना उनका एक कॉल फॉर मीटिंग के लिए एक उनका वो एक रिचुअल होता है कि दे क्या नाम है सिंग अ सॉन्ग जो कि दूसरा चिड़िया पहचान लेता है, एंड दैट्स हाउ द मीटिंग हैपेंस. तो आप एक ही लिख सकते हो, देयर इज डिफरेंस इन व्हाट? डिफरेंस इन मेटिंग कॉल. डिफरेंस इन व्हाट? इन मेटिंग कॉल. आप एक ये लिख सकते हो, लाइक आप ये भी लिख सकते हो डिफरेंस इन व्हाट? इन कोर्टशिप बिहेवियर. डिफरेंस इन यानी मीटिंग बिहेवियर में फर्क आ जाए, सीजन फर्क हो जाए, बहुत सारे डिफरेंट रीजन हो सकते हैं. लाइक सो डिफरेंस इन व्हाट? इन कोर्टशिप बिहेवियर. दीस आर ऑल रीजंस जिसकी वजह से ये सारे हुए जो कि बिहेवियर में डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से ओवर टाइम क्या हो सकता है आपके पास behavioral isolation operational होती है, and then the two organisms eventually fail to interbreed to produce what? Fertile offspring. Please remember ये same ही geographical region में हो रहा है, but when they feed on different क्या नाम है organisms, यानी उनका dietary pattern different हो जाता है, mating pattern different हो जाता है, mating call different हो जाती है, तो over time this takes a long period of time. ऐसा नहीं होता आपने जनवरी में किया तो फरवरी में अलग स्पीशी आ गया. It takes a long thousands of years for this to happen. Like so over time these factors contribute to behavioral isolation, which can lead to what we call as what? Sympatric speciation. Next part. In the Southern Ocean, which surrounds Antarctica,
there are 3 distinct types of orca. वो आपको एक और रीजन के बारे में बता रहा है जो कि अंटार्कटिका के अराउंड है. वहां there are 3 distinct types of orca, type B, C and D. Figure 2.3 shows the locations around Antarctica where type B orca, C and D orca have been observed. Type B orca and type C orca are mainly seen near the coastline of Antarctica, जिसको inshore बोलते हैं. यहाँ आप नोट करो, यहाँ पे अंदर वाला जो एक सर्कल बना हुआ है डॉटेड लाइन से, लाइक वो रीजन लेबल्ड है इनशोर रीजन ऑफ द सदर्न ओशन. इसके अंदर आपको जो ट्राइंगल्स और स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं वो बेसिकली टाइप बी और टाइप सी orca है. See, so type B orca and type C orca are mainly seen near the coastline of Antarctica, जिसको inshore लेबल किया हुआ है. And type B orca are mainly seen in the southern ocean further away from the coastline of Antarctica, जिसको offshore लेबल किया हुआ है. तो ये जो आपके पास दो डॉटेड लाइंस के बीच में रीजन है, that is the region which is labeled as offshore. और यहाँ पे आपको ये जो सर्कल वाले नजर आ रहे हैं, they represent the type D orca. like तो आपको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप B, C and D orca इस डायग्राम के ऊपर फिगर 2.3 में दिखाया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ. नेक्स्ट पेज पे there are phenotypic differences between the different types of orca. Figure 2.4 shows the diagram of a type B orca, a type C orca and a type D orca. आपको जो है वो डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं. phenotypic वो क्या है आप खुद नोट कर लो ना, उसने कुछ तो लेबल किया हुआ, तो वो तो आप सबसे पहले तो आई लेबल किया हुआ है, वही देख लो भाई. इसका आई पैच जो है वो सबसे बड़ा है, नजर आ रहा है आपको, लाइक इसका उससे छोटा है, और टाइप डी का तो बहुत ही छोटा है आई पैच, लाइक अनयूजुअली छोटा है. लाइक दूसरा आपको इन दोनों की बॉडी में ऊपर देख लो डार्क कलर का पैच नजर आ रहा है. कैन यू सी दैट? तुम लोग की फोटोकॉपी में तुम्हें क्लियर नजर आ रहा नहीं, बट डायग्राम में यहाँ तुम क्लियर देख सकते हो. देयर इज अ ब्लैक कलर का पैच डायग्राम में, वो फोटोकॉपी है, लाइक डार्क कलर का पैच है ऑन टॉप ऑफ द बॉडी इन टाइप बी एंड सी, जो कि टाइप डी में आपको नजर ही नहीं आ रहा है. प्लस इनके जो फिन्स का थोड़ा सा आप देख लो, वो साइज में डिफरेंस है. इनका लेंथ में आपको नजर आ रहा है डिफरेंस है. इनके जो ये डोर्सल वाले आप देख लो लाइक फिन्स, उसमें आपको नजर आ रहा है लाइक थोड़ा बहुत जो टेल है इनका, सॉरी, इसमें आपको थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंट साइज में नजर आ रहा है. सो दीस आर ऑल फिनोटाइपिक डिफरेंसेस दैट यू कैन अप्रिशिएट ऑन द डायग्राम ओवर हियर, लाइक. ठीक है, पार्ट 1, लुक एट द लेंथ दैट दे हैव. दिस इज फ्रॉम 0 to 7 meters. तो ये बहुत लंबे होते हैं. आप में से, हम में से यहाँ जितने भी हम बैठे हैं, किसी की भी हाइट 2 मीटर से ज्यादा नहीं है, लाइक विद इन 2 मीटर है. सो इनका साइज ही बहुत, इनके छोटा वाला साइज भी बहुत बड़ा होता है, लाइक दीस आर ह्यूज मैमल्स. लाइक पार्ट 1, with reference to figure 2.4, state one way in which the type D orca is different from both the type B orca and the type C orca. But एक छोटा सा, like it has a very small word, it has a small type D ये वाले, okay, small eye patch. It has a very small eye patch. eye लिख दो आप, उसने जो लेवल किया हुआ है, अगर आपको eye patch लिखना, आप सिर्फ eye लिख दो. कोई एक चीज नहीं दी, पूरा यहाँ डिक्शनरी मत लिख के आना, लेंथ ये वो ये, बस एक लिख के आना. उसने लिखा है स्टेट 1. So just try to use as minimal words as possible. Part 2, phenotypic differences between type D orca and the other types of orca shown in figure 2.4 could have resulted from the process of genetic drift, including the founder effect. So खुद वो आपको prompt कर रहे हैं कि ये जो थोड़े बहुत phenotypic differences आ रहे हैं, like between type D and the other types of orca, उसका एक possible हो सकता है भाई cause क्या हो, genetic drift हो रहा हो. और genetic drift का भी उसने type बता दिया, कौन सा वाला, founder effect. हो सकता है और भी type का हो. Suggest how genetic drift could result in phenotypic differences between type D orca and the other types of orca. ऐसे क्वेश्चन ना usually आपको bother करते हैं एग्जाम में. Try to keep these answers as simple as possible. Stick to the basics. आपने उसने genetic drift आपको prompt किया ना, बस उस पर अटक जाओ. पहला जुमला ये लिखो, involves changes in allele frequencies due to what, अचानक. स्टार्ट यहाँ से करो. लाइक आपको पता है जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, आपने डेफिनेशन ही ये पढ़ा है ना. लाइक तो आप बताओ भाई, this involves changes in allele frequencies, involves changes in allele frequency due to what, due to chance. अब आप थोड़ा सा बताओ भाई क्या हो सकता है. तो आप ये बोल सकते हो they might be what, segregation of a smaller group, क्योंकि उसने founder effect mention किया ना. तो अब segregation of what, of a smaller group from the original population, like ताकि एक small population क्या हो जाती है, अलग हो जाती है. तो आप लिखो involves change in allele frequency due to chance inward in a small population isolated from original population.
population. Isolated from what? From original population. और तीसरे मार्क के लिए फाउंडर इफेक्ट की कोई और चीज याद आ रही है आपको? कोई एक और चीज बता दो। जब भी फाउंडर इफेक्ट होता है, देयर इज अ फिनोमेना दैट अकर्स विद इट। हाँ, इनब्रीडिंग लिख सकते हो, एब्सोल्युटली, बिल्कुल लिख सकते हो आप इनब्रीडिंग। और क्या लिख सकते हो? उससे भी आसान, अलीज का बताओ, अलीज के रेफरेंस से लाइक एब्सोल्युटली यू रोट इनब्रीडिंग ओवर हियर, यू गेट अ मार्क। इनब्रीडिंग होती है, उसकी वजह से क्या होता है उससे अब याद आ जाएगा, डिक्रीज इन जेनेटिक। जब भी आपके पास, भाई मिसाल के तौर पे मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था, एक चरवाहा जो है वो बकरियां लेके जा रहा है, ब्लैक वाली, व्हाइट वाली, ब्लैक एंड व्हाइट वाली, ब्राउन वाली, सब। वो बकरियां पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, वो आपने देखा होगा, वो अक्सर होता है, ग्रीन पहाड़ी है, फुल टाइम चढ़ रहा है। उसमें से एक छोटा सा टोला अलग हो गया, और लेट्स से वो जो टोला अलग हुआ ना, वो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट वाला। तो आपके पास ये जो छोटा टोला अलग हुआ है, उसमें वो वाली एलीट सारी थोड़ी है जो बड़े वाले पूरे ओरिजिनल ग्रुप में दिखाई। सो जब भी ये फाउंडर इफेक्ट होता है, जनरली देयर आर व्हाट? लॉस ऑफ एलीज। देयर आर व्हाट? लॉस ऑफ एलीज, एंड देयर इज रिडक्शन इन व्हाट? जेनेटिक डाइवर्सिटी। और आप इसी चीज को, जैसे नाइल ने बोला, आप बिल्कुल लिख सकते हो, ये छोटे टोले में आपस में ही मेट करेंगे ना, तो देयर विल बी अ फिनोमेना ऑफ व्हाट? इनब्रीडिंग डिप्रेशन दैट विल आल्सो हैपन। वो भी मार्किंग पॉइंट आप वो भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, देयर इज व्हाट? देयर इज लॉस ऑफ एलील, there is reduction in genetic diversity due to reduction in genetic diversity due to what? Due to loss of allele. Due to what? Due to loss of allele. Please, when you get questions of this nature, जहाँ आपको सोचने में कभी प्रॉब्लम हुए, क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ना, डोंट रश टू द आंसर एंड स्टिक टू योर बेसिस, मोर और लेस। भाई हो सकता है एक मार्क आप लूज कर लो, मेजोरिटी तो आप ले लोगे ना यार। आप इसी तरह आप सोचो कि आप एक्चुअल एग्जाम में बैठो, वहां मार्क्स की नहीं है, लाइक, एंड ट्राई टू सी एग्जैक्टली हाउ मच यू विल स्कोर। नेक्स्ट पार्ट, in the future the different types of orca may be classified as separate species. If so, some of these newly classified species will have very small population sizes. Suggest two factors other than population size that should be monitored when assessing the conservation status of any newly classified species of orca. तो उसने आपको यहाँ एक कीवर्ड दे दिया, conservation status, जिससे रिलेटेड भाई आप कौन-कौन से फैक्टर सजेस्ट कर सकते हो। तो एक फैक्टर क्या होगा कि भाई आप देखो कि जहाँ ये अब हैं वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कितना है। See, so one factor could be what? Available quantity of food available. क्या हो सकता है? Quantity of what? Quantity of food available could be what? Could be one factor. एक और फैक्टर आप क्या दे सकते हो कि भाई जिस हैबिटेट में ये सर्वाइव कर रहे हैं वो हैबिटेट कितना स्टेबल है। भाई अब यहाँ पे इनका जो हैबिटेट होगा वो सी वाटर होगा ना, उसकी इंस्टेबिलिटी क्या हो सकती है भाई? फॉर एग्जांपल नीचे सबमरीन कितनी चलती है या ऊपर शिप्स कितना है। दिस वाज अ मार्किंग पॉइंट, लाइक कि हैबिटेट डिस्टर्बेंस कितना है, लाइक दैट कुड बी वन फैक्टर दैट कुड डिसाइड कि इनका कौन। आप ये भी लिख सकते हो कि इनका रिप्रोडक्टिव रेट किस क्या क्या है इन द हैबिटेट, लाइक भाई फर्टिलिटी रेट ज्यादा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भाई के मेटिंग ही नहीं हो रहा है और जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम इंक्रीज ही नहीं हो रहे। Even that could be a suggestion that you could look at. मैं यहाँ लिखता हूँ भाई habitat stability of what? Stability of habitat। एक और मैं लिख देता हूँ, लिखना जरूरी नहीं है, मैं एक और मार्किंग पॉइंट के लिए आप लिख लो लाइक कि भाई उनका fertility rate, effect on what? Effect on fertility or reproductive rate. Fertility or reproductive rate। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। Gentamicin is an antibiotic used to treat severe bacterial infections in children. Some children have a genetic mutation in the gene MTRNR1. If gentamicin is given to children with this genetic mutation, it can cause deafness. यानी अगर ये mutation होता है in this gene, तो जो side effect होता है gentamicin का एक, वो इन बच्चों में phenotypically observe हो जाता है, like, ठीक है। So some children have a genetic mutation in the gene MTRNR1. If gentamicin is given to children with this genetic mutation, it can cause deafness. Before gentamicin can be given to a child with a severe bacterial infection, PCR, which is polymerase chain reaction, and electrophoresis are used to test whether the child has this mutation. If the mutation is found, a different antibiotic must be given. Because ऐसी बात है, आप अगर दे दोगे तो उसकी वजह से deafness हो जाएगा। Part 1.
Describe and explain the role of Taq polymerase in PCR. उसने जानबूझ के यहाँ and को bold किया because वो चाह रहा था आप पहले describe के लिए एक mark दो ना. Taq polymerase is a DNA polymerase. That is what they wanted you to write for the first mark. Do you understand that? आप बेशक कहीं भी लिख दो वो, but description का यहाँ ये मतलब है. Taq polymerase तो एक Taq is a unique name that is given to what to the bacterium from which we extract this polymerase ना. तो आप क्या लिखोगे that this is what, this is a DNA polymerase enzyme. This is what, this is a DNA polymerase which is what, अब आप explain करो उसको, which is what, which is thermally stable, which is thermally stable. यानी आप लिख दो thermally stable के साथ आप एक bracket में डाल दो कि doesn't denature at what, what's the maximum value of temperature in the cycler, उसको याद 95. So आप लिख सकते हो doesn't denature at what, at 95. I think marks की में ये अलग marking point था, but इतना भी marking point ना गिना करो, मतलब लिख दो लगे ताकि आपको statement थोड़ा सा sense बने रही. So it's a DNA polymerase which is thermally stable. अब आप बताओ ये करता क्या है ना? So what is that? What it does is that it catalyzes the elongation of the new DNA strand that is synthesized. So what we write is this enzyme catalyzes the elongation of what, of the new DNA strand by forming what? By forming phosphodiester bond between what? Between the growing chain and the incoming nucleotide. Growing chain and the activated nucleotide. आपने इतना लिख लिया, आपको आपके मार्क्स मिल गए. लाइक इसमें अगर आप ऐड करना चाहो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? सो क्या कितना है? 72. रेंज होती है 70 to 75, कोई भी वैल्यू लिख दो, पर आपने जो रटा हुआ है वही लिख के आओ ना, मार्क्स में जोड़ो. आपने जो 3 टेम्परेचर वैल्यू रटा हुआ है वो क्या है? 65. आपने शुरू में आपने सबसे पहले डिनेचरेशन आप करते हो 95 पे, फिर टेम्परेचर ड्रॉप करके आप 65 पे लेके आते हो, अनीलिंग करते हो, फिर 72 पे लेके आते हो और क्या करते हो? इलोंग. तो एक वैल्यू लिखे हो ना, तो मार्क्स में वही लिख लो नहीं. सो द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज व्हाट? ऑप्टिमम टेम्परेचर for Taq polymerase activity is what? Is 72. Do you remember these temperatures? आपको याद आने दिखना. अब मुझे इसमें पूछो. हाँ उसी में देना है. लाइक you want to write about base pairing किस तरह ये होती है, लाइक वो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो. Any वो point which is relevant to the activity of the enzyme, that's fine, बिल्कुल लिख सकते हो. ठीक है. Part 2. PCR with primers specific to mTORNR1 gene is used to amplify DNA from the child that is being tested. The PCR primers are designed so that the amplified product of the normal allele of mTORNR1 is longer than the amplified product of the mutant allele. इसका मतलब ये है कि भाई mutant allele वाला जो होता है क्या नाम है, वो छोटे साइज का होता है लाइक, और ज्यादा दूर ट्रैवल करेगा ना आपके पास इलेक्ट्रोफोरेस में. जितना छोटा साइज होगा उतना मास कम हो जाएगा ना, तो इट विल बी एबल टू ट्रैवल फॉरवर्ड. लाइक जो नॉर्मल एलील है वो लंबा है तो उसका मास ज्यादा होएगा, तो इट विल ट्रैवल व्हाट? लेस. तो आपको बेसिकली ये स्टेटमेंट से प्रेडिक्ट क्या नाम है, डिड्यूस ये करना, प्रेडिक्ट नहीं, डिड्यूस ये करना था कि नॉर्मल एलील जो होगा दैट विल ट्रैवल लेस, और जो म्यूटेंट एलील होगा दैट शुड बी एबल टू ट्रैवल व्हाट? ट्रैवल further. लाइक ठीक है ना. तो आपको ये खुद डिड्यूस करना है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन. Gel electrophoresis is used to separate the PCR products. Figure 3.1 shows the results of gel electrophoresis after using this method of PCR on DNA samples collected from 3 children. तो आपको यहाँ दिया हुआ भाई child 1, child 2, child 3. कौन सा नॉर्मल चाइल्ड है? कौन सा वाला नॉर्मल चाइल्ड है? 1. एब्सोल्युटली है. कौन से वाले में म्यूटेंट एलील प्रेजेंट है? 2 and 3 में. Can you tell me the genotypes of 2 and 3? Tell me the genotypes of all of these in terms of कौन सा homozygous ये और ये. Given that मैं ऐसी आपको given that कि normal dominant, let's ऐसा कुछ है नहीं मैं आपको, let's assume normal dominant है, like
ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट पॉसिबल है। वैसे ही बोलो, अजीम करो अगर नॉर्मल डोमिनेंट है तो इनमें से जो आपके पास जीनोटाइप है वो क्या है? चाइल्ड 1 का जीनोटाइप क्या है? चाइल्ड 2 का क्या है? आप मुझे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस बताओ, छोड़ो आप डोमिनेंट। चाइल्ड 1 is homozygous or heterozygous? Homozygous, because एक बैंड नजर आ रहा है। Child 2 is what? Again homozygous, and child 3 is what? Heterozygous. और आपने क्यों बोला child 2 and 3 में mutant allele है? Because आपको पता है mutant allele travels further. तो ये वाली फार्दर वाली यहाँ भी नजर आ रही है, यहाँ भी नजर आ रही है, तो ये वो वाले चिल्ड्रन है इनके पास क्या है? म्यूटेंट एलील प्रेजेंट है, इनमें जेंटामाइसिन शुड नॉट बी व्हाट प्रिस्क्राइब। कोई और एंटीबायोटिक आपको क्या करना होगा? प्रिस्क्राइब करना होगा। स्टेट व्हिच ऑफ द चिल्ड्रन इन फिगर 3.1 cannot receive the antibiotic gentamicin to treat severe bacterial infection, so that should be what? Child 2 and 3, and most likely हो सकता है ये डोमिनेंट वाली एलील हो, क्योंकि हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो रही है ना, आप बोलो नहीं तो लाइक या हो सकता है कोई मिक्स्ड वाला इनहेरिटेंस वाला भी सीन हो, उसने इसलिए कुछ बताया ही नहीं इसके बारे में। पार्ट 3, yes, आने रट्टे के explain how gel electrophoresis produces the pattern of results shown in figure 3.1 from the PCR products of the MDRNR1 gene। तो आपने बस बताना है भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस तरह किया जाता है यहाँ पे, लाइक हाँ, और जो पीछे रिजल्ट्स आए हैं वो पैटर्न ऑफ रिजल्ट्स किस तरह इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल है भाई, आप बेसिक चीजें देखो। आप पहले बताओ इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? चार्ज टू मास। डू यू रिमेंबर? ज्यादा आपको तो नहीं मिलेगा। सो आप क्या लिखो? इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस फोरेसिस separates DNA fragments on the basis of what? On the basis of charge to mass ratio। फिर आप चार्ज और मास के बारे में आप बताओ। all DNA fragments are what? Negatively charged, hence they always move towards what? Towards the angle। ये आपको याद है ना, लाइक तो ये दो अलग अलग मार्किंग पॉइंट है। तो आप लिखो भाई all DNA fragments, why are they negatively charged? Because of the phosphate group। so all DNA fragments are what? They are negatively charged and hence move towards या आप इसको इस तरह याद करो जैसे आप वो नहीं पढ़ते हैं एनाइन जो होते हैं वो एनोड, या आप उससे याद कर रहे हैं, ठीक है। hence move towards what? towards the anode from the cathode। फिर आप बताओ smaller fragments travel what? farther, and heavier fragments travel what? less। आप ये बताओ लाइक तो स्मॉल, ये साइज ऑफ द फ्रैगमेंट आ जाएगा ना, मास वाले से लिंक कर दोगे आप उसको, लाइक ठीक है। सो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स travel what? travel farther, sorry, and heavier fragments travel what? travel lesser distance, and you should be able to score your 4 marks over। आप इसमें अब लिखना चाहो म्यूटेंट एलील जो है वो ज्यादा दूर ट्रैवल करती है, नॉर्मल वाला कम ट्रैवल करता है, इवन दैट इज परफेक्टली फाइन। आप वो भी ले सकते हो, इवन दैट इज अ मार्किंग, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे म्यूटेंट एलील therefore what? therefore छोटा वाला म्यूटेंट था ना, therefore travels what? travels farther, ठीक है। पार्ट बी, ये इसका है, आपको रट्टा याद है नहीं आपको। Some bacteria have plasmids that contain a gene conferring resistance to gentamicin. The gene can be transferred to other bacteria. Suggest how the gentamicin resistance gene can be transferred to other bacteria। like बताओ भाई किसको याद है ये? हाँ, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। अबे वर्टिकल में सेम स्पीड क्यों? हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन के आपको तीनों नाम याद है? किसी को याद है 3 नाम? हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन आकर एक्चुअली मार्क्स स्कीम में सारी टर्म्स एक्सेप्टेबल। Those who wrote horizontal transmission got the mark. Those who wrote any of the specific types of horizontal transmission also got the mark। किसी को याद है 3 टाइप? 3 टाइप याद है?
अगर याद है लाइक स्ट्रेट 4 वेज तो क्या करते लाइक? किसी को याद है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन का टाइप्स? एक टाइप का नाम सी से आता है, याद आ रहा है आपको? बाकी 2 टाइप का नाम टी से आता है, कुछ याद आ रहा है आपको? Okay, so you could write horizontal transmission or any specific type of horizontal transmission. वो मैं आपको तीनों टाइप याद करा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन का जो, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन जो व्हाट्सएप पे बता रहे हैं उनको आंसर करा। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन का जो 3 टाइप होता है वो ये होता है, लाइक देयर इज समथिंग दैट वी कॉल एज कॉन्जुगेशन, नॉट श्योर इफ यू रिमेंबर दिस टर्म, कॉन्जुगेशन याद है आपको? देन देयर इज समथिंग दैट वी कॉल एज ट्रांसडक्शन and there is something that we call as transformation. You have studied this in AS जब आपने antibiotic resistance पढ़ा था। In fact A2 में भी मैंने आपको कहा था आप ये चीज रिवाइज कर लेना from your AS जब हमने वो selection evolution में directional selection किया था, आपको याद है लाइक उसमें आपने ये चीज पढ़ी थी antibiotic resistance वाली, ठीक है?